अच्छा, RSA. Of course, one of a very big invention in the field of the cryptography and in the field of the information security. Beforehand, one other algorithm was also developed, that is the Diffie and Hellman algorithm. We will discuss it in the next class. But the Diffie and Hellman algorithm was used only for the exchange of key or for the exchange of the password. It was not a general purpose algorithm, whereas this algorithm is a general purpose algorithm and is used for encrypting uh, a data of any size, whereas the Diffie and Hellman algorithm was used only to encrypt a password, and it was used for only the secure sharing of the password. That's the password. The classical in the symmetric key cryptography, as we know, that the parties were having the same key, the sender and the receiver. So how to send this key from sender to the receiver securely? So this was the Diffie and Hellman algorithm was used. The RSA was developed, and of course, as I said, that it was a very big invention in the field of the cryptography in 1977 by the three scientists. As the name stands, R stands for the Ravist, S stands for the Shamir, and A stands for the Eldman, and the best and widely used public key scheme. Uh, if you ask me that what is your opinion about the RSA in the current security and cryptography, so almost 90 to 95% of the commercial, uh, the banking systems, and the military purposes, for the sake of the military purpose, the RSA is used. Of course, the level of implementation and the key size is different, but the RSA is of course used by various of organizations, and I will show you in the next coming classes also that which of the organizations are using the RSA algorithm and how securely they are using it. But in other sense, I am telling you that the public key tunneling and the secure VPN, all these are using the RSA algorithm, and almost all the security uh, devices provided by the Cisco or any other Huawei and any other companies, those are providing the network facilities all over the world to secure their networks and to secure their transactions. Sorry, sir. Your screen is not present. The screen is not available to you. Is it shared? Okay, let me stop the sharing and let me share it again. Okay. Screen now available, sir. अच्छा बस मैंने तो अच्छा अब भी अवेलेबल है स्टिल द स्क्रीन इज अवेलेबल आर नॉट अभी मुझे तो नहीं सर मैं चल दोबारा मैं करता हूँ ठीक है ना ठीक है लेट मी शेयर इट वंस पहले अगेन पहले था सर अब नहीं है वो मैं दोबारा करता हूँ ठीक है ना अब हो गया अवेलेबल हो गया स्क्रीन मेरा क्या नहीं यस सर हो गया सर अच्छा सो it is using the public key cryptography and the modular mathematics or the modulo prime as you see over here. Clear? So what we did up till now, it was
making a background for understanding the RSA. That's why I discussed the topics in 1.5 week, one full week, the previous and half week, this one, to understand the RSA. So looking to the RSA algorithm, it has using the scheme that each user generates the public and private key pairs by selecting two large primes at number random P and Q. Large means how much large? We will discuss it in detail, inshallah, when we will study the security of the RSA. But at the moment, I told you find out the prime number between 1 and 100. Clear? And if I tell you what are the prime numbers above 2000 or 10,000, or say for example 1 million, the prime numbers above. So of course, this is a very difficult task to find out the very large prime numbers, and a very big amount of research is available on the prime value finding, and it is one of a very difficult job, but different scientists are working to find out the prime numbers. But of course, we will discuss it later on, that how to find out a prime number and how much large it could be, and different researchers are working on it, and what is the existing largest prime number in the world, the non-prime number in the world. There is a very big research on it, but at the moment let me concentrate only to understand the RSA. That's why two large prime numbers, assume how much large, imagine this, to make it impossible for a computer to find out the value of P and Q. This is important thing. For example, if someone asks you a large prime number, and if I tell you that a processor or a computer is given to you to find out uh, uh, the P and Q for a given number, and it is not possible for the computer, that is the largest prime, but leave it at the moment. Computing the system modulus n, that is the multiple of P and Q. So what you did? You find out prime P and prime Q. Clear? And in the next step, what are you doing? You multiply both to find n. What we did over here, if you remember it. If you were present in the previous session, so this is. So this one. So here you find the value of n. Now find out phi of n. What do you mean by the phi of n? The total function. What is the phi of n? It is the total value that is equal to p minus 1 into q minus 1. G. So it is understood that n is the multiple of only two numbers, and it is p and q, and both are prime. So the total value will be found by phi of n is equal to p minus 1 into q minus 1. Clear? What we did in the previous class. Next, selecting at random the encryption key, that is E, that is the password, that is the encryption password or encryption key. Now there are two conditions for it. Condition number one, this one. And this is condition number two. Number one,
that E lies between 1 and phi of n. We will explore with example also, don't worry of it, but for the time being. Let me increase its size a bit. So E lies between 1 and phi of n. And what is the second condition? That the GCD of E comma phi of n is equal to 1. That E is relative prime to the phi of n. So these are the two conditions. If they meet, both the conditions meet, then that number could be taken as a prime number. Clear? Otherwise, not. Do you understand what am I saying? सर एक दफा फिर से एक्सप्लेन कर दें स्टेप। देखिए, मैंने ये कहा आपसे कि दो लार्ज प्राइम नंबर्स को आपने सेलेक्ट करना है। इसकी समझ आ गई? इस स्टेप की समझ आ गई कि सेलेक्ट टू लार्ज प्राइम नंबर। ग्रेटर प्राइम नंबर्स, जी ग्रेटर प्राइम नंबर्स को सेलेक्ट दो प्राइम नंबर्स को सेलेक्ट करना है, उनको फिर जो बहुत बड़े बड़े हो, n निकल आएगा, जो बहुत बड़े बड़े हो। सेकंड में आप क्या करते हो कि दोनों को मल्टीप्लाई करके n को आप फाइंड आउट कर लेते हैं। उनको मल्टीप्लाई करके n आपको मिल गया, ठीक है। ठीक। नेक्स्ट में आपने क्या करना, टोटल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। जो हमने अभी वैल्यू ऑफ n जो है वो, हाँ, जो अभी हमने इस सेशन में हमने ये देखे पढ़ लिया है, टोटल फंक्शन। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। ये भी आपने फाइंड आउट कर दिया। अब फार्मूला अब हमारे पास आ गया, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन, वेयर p इज ए प्राइम एंड q इज ए प्राइम, बोथ आर प्राइम, दोनों प्राइम है, ठीक। अच्छा, ये भी हो गया। अब सेकंड कंडीशन को आप देखें कि आपने इंक्रिप्शन की यानी पासवर्ड, हमने यही पढ़ा ना कि फॉर द पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी आर यूजिंग टू पासवर्ड, वन फॉर द सेक ऑफ इंक्रिप्शन, द अदर फॉर द सेक ऑफ डिक्रिप्शन। यानी दो पासवर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, एक किस पर्पस के लिए, इंक्रिप्शन के लिए, दूसरा किस पर्पस के लिए, डिक्रिप्शन के लिए। तो अब हमने इंक्रिप्शन की फाइंड आउट करनी है, ठीक। अब इसके लिए दो कंडीशंस हैं, बनानी है, हाँ, फाइंड आउट करने, बनानी है या फाइंड आउट करने, जो भी आप कहें, ठीक है। अब दो कंडीशंस हैं इसके लिए। कंडीशन वन क्या है कि E मस्ट बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन phi ऑफ n, यानी इन दोनों का जो मल्टीप्लायर है इससे लेस हो, यानी 1 से बड़ी हो और phi ऑफ n से छोटी जो हो, हमारी 1 से बड़ी है, ठीक है, और phi ऑफ n से छोटी हो। यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करेंगे ना, तो जो वैल्यू आएगी इससे इसको छोटा होना चाहिए, यानी दोनों के बीच में हो, इससे छोटी होनी चाहिए। मसलन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि एग्जाम्पल अभी हम करेंगे आगे, डोंट वरी अबाउट, ठीक है। ये देखिए एग्जाम्पल हमारे पास ये अवेलेबल मैंने दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल भी मैं आपको करा देता हूँ, लेकिन पहले इसको आप अंडरस्टैंड कर लें, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है ना। तो ये इसकी समझ आ गई फर्स्ट कंडीशन की। जी सर, आपके अलावा परफेक्टली। इतने सारे जो और शहजादे बैठे हुए हैं, समझ आ रही है कंडीशन वन की। बेलाल है, जाहिर है, किफ़ायत है, हफीजुल्लाह है। तो मतलब अगर नहीं समझ आती तो बेशक आप सर चलते जाए, आगे चलते जाए सर। अच्छा अच्छा अच्छा, दौड़ लगाऊं या ज़रा स्लो मोशन में जाऊं? असल में बाज़ औक़ात बार बार बंदा रिपीट करते हैं ना, तो आप जैसे जीनियस बंदे
बोर हो जाते हैं उससे कि देखें कितनी बार ये रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। आसान सी चीज़ होती है, बंदा बार बार रिपीट कर। बहरहाल, अच्छा, अब इस कंडीशन को आप देखें कि ई मस्ट बी रिलेटिव प्राइम टू फाई ऑफ एन, यानी 1 और फाई ऑफ एन के बीच में हो, लेकिन दोनों आपस में रिलेटिव प्राइम भी हो। ये दोनों कंडीशंस मीट करें। सही। अगर किसी दो नंबर की जीसीडी 1 हो तो वो आपस में क्या होंगे? रिलेटिव प्राइम होंगे। तो कंडीशन 1 की समझ आ गई। वो तो कंडीशन ट्रू है, सही। अब कंडीशन 2 की समझ आ गई कि दोनों आपस में क्या हो? रिलेटिव प्राइम हो। रिलेटिव प्राइम होने चाहिए। सही। हाँ या ना? जी सर। ओके सर। आपके अलावा बाकी किसी को कोई क्वेश्चन है? आखिर में फिर ना कहें कि हमें तो समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि मैं फिर आगे चला जाऊंगा, फिर आप बीच में कह देंगे कि हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, तो बस मैं फिर दोबारा नहीं कराऊंगा। अच्छा, ये टॉपिक देके मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में क्या करना है, आपने डिक्रिप्शन की को फाइंड आउट करना है। डिक्रिप्शन की, तो इसके लिए तो ये दो कंडीशंस हो गए, ठीक है ना। अब डिक्रिप्शन की के लिए क्या है कि इट इज, अब देखिए, अब इसके लिए ये कंडीशंस हैं, ठीक है। ये कंडीशन है और ये दो कंडीशंस हैं। इसका भी मैं थोड़ा सा सेट कर दूं। ये स्लाइड में आपके साथ इस ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल सेट, इसको मैं इंडेंट कर दूँ। अच्छा, विजिबल है। जब इसमें दो कंडीशंस है, कंडीशन बी की तो आपको समझ आ गई आसानी से, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे करूं कि इसको मैं ऊपर कर देता हूं, ठीक है ना, इसको वो नीचे हो गया, ठीक है ना। पहला कंडीशन क्या है कि 0 से वैल्यू ग्रेटर हो और लेस देन n हो, ठीक है। अब ये दूसरा कंडीशन क्या है कि d की वैल्यू कैसी हो कि वो आप e से मल्टीप्लाई करें और फाई ऑफ n के ऊपर डिवाइड करो, रिमाइंडर आपको 1 मिले। यानी इसको मैं ऐसे लिख लूं, मैं इसको ऐसे लिख लूं, ठीक है ना। ई जी, मैं ई जी के साथ ऐसे लिखूंगा, ठीक है। कैसी हो या ई डॉट डी, ठीक। ये देखिए ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। मोड फाई ऑफ n is equal to 1। ये हो इसमें, यानी कैसे हो, डी की वैल्यू कि अगर आप उसको फाई ऑफ n के ऊपर डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपको क्या मिले? 1 मिले। ये इसके दो कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन क्या है कि 1 0 और n के बीच में हो। दूसरा क्या है कि d की वैल्यू e से मल्टीप्लाई आप करें और फाई ऑफ n के ऊपर डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपको 1 मिले। ये दो कंडीशंस आपस में मीट करें। जी, क्वेश्चन।
क्वेश्चन कोई है? नो, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसको हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब इंक्रिप्शन इसकी कैसे होगी? टू एनक्रिप्ट अ मैसेज एम, द सेंडर ऑब्टेन्स द पब्लिक की। ये आप देखें यहाँ पर ये अवेलेबल है। ये ई कामा एन जो है पब्लिक की होगा और डी कामा एन जो है वो क्या होगा? प्राइवेट की होगा। तो एनक्रिप्शन कोई भी कर सकेगा इस की के साथ। डिक्रिप्शन कौन कर सकता है? जिसके पास डी कामा एन ये पेयर उसके पास अवेलेबल। जी जी डिक्रिप्शन। जी जी, यानी डिक्रिप्शन हर कोई नहीं कर सकेगा क्योंकि पब्लिश हुआ है ना, ई कामा एन। पब्लिश का मतलब है हर एक को मिल गया। जी। जबकि पी आर यानी पी यू मीन्स पब्लिक की, पी आर मीन्स प्राइवेट की। तो प्राइवेट की क्या है? डी कामा एन है। तो जिसके पास डी कामा एन होगा वही डिक्रिप्शन कर सकेगा, उसके अलावा कोई भी डिक्रिप्शन नहीं कर सकेगा। क्लियर? अच्छा, अब फार्मूला क्या है एनक्रिप्शन के लिए? C इज इक्वल टू एम पावर ई मोड एन। C क्या है? साइफर टेक्स्ट, M इज द मैसेज, E इज द एनक्रिप्शन की, मोड N। ये इसका फार्मूला है। यानी आपने क्या करना है? M का पावर E आप ले लें और N के ऊपर डिवाइड करें, तो रिमाइंडर जो आपको मिला दैट विल बी द साइफर टेक्स्ट। डिक्रिप्ट आपने कैसे करना है? M इज इक्वल टू C पावर D मोड N। यानी अगर आप C का पावर D ले लें और N के ऊपर डिवाइड करें तो आपको फिर वापस प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। M स्टैंड फॉर द प्लेन टेक्स्ट, C स्टैंड्स फॉर द साइफर टेक्स्ट। कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। जी, आपके अलावा? अच्छा, ऐसा करते हैं, ठीक है, मैं इसी के साथ लेक्चर को स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीक जो है मैं इसकी एग्जाम्पल फिर करा देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं या तो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर या अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, ठीक है, या लगता है कि कुछ ज़्यादा हो गया तो इस वजह से शायद थक गए हैं। मुझे नहीं पता कि क्या फैक्ट है, ठीक है। क्या करूं बताओ? सर आप एग्जाम्पल कराएंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर मैं आगे जाऊंगा, क्वेश्चन नहीं करेंगे तो मैं समझूंगा को आपको नहीं समझ आ रही, तो फिर मैं किसको पढ़ाऊँ? दीवारों को पढ़ाऊँ, ठीक है। अब ये देखिए इसकी एग्जाम्पल करें, खैर वहां पे समझ आ। ये देखिए आप, टू प्राइम ना, मैंने तो लार्ज प्राइम कहा है ना, वेरी लार्ज, लेकिन मैं अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैंने क्या कहा कि P इज इक्वल टू 70 एंड Q इज इक्वल टू 11। 17 और 11 ले लिया। तो ये आप बता दें कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है? दोनों प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है देखें। मल्टीप्लिकेशन टू गेट n। जी, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है? n को फाइंड आउट कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया है, n हासिल कर, n हमें मिल गया, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? वैल्यू ऑफ n चाहिए, हमने फाई ऑफ n को फाइंड आउट कर दिया, ठीक है ना। फाई ऑफ n तो क्या है? p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1। क्यों? p एंड q बोथ आर प्राइम। तो इससे वैल्यू हमें क्या मिल गई? 160। क्या वैल्यू हमें मिल गई इससे? बोले 160 मिल गई, ठीक। अब हम यहाँ पर जो कंडीशंस हैं दो, इसको आप देखें।
पहला कंडीशन क्या है? ई लाइज बिटवीन, ई को आप सेलेक्ट कर लें। कैसे? कंडीशन ये है, मस्ट लाई बिटवीन 1 एंड 5 ऑफ n। तब आप यहां पर आप आए, हमने ई को 7 चूज कर दिया, तो 1 और 5 ऑफ n के बीच में है कि नहीं? किया सर अपनी हाँ तरफ से। हाँ, आप, मैंने 7 चूज किया, आप कोई और चूज करें, लेकिन 1 से बड़ी हो और 160 से लेस हो, ये इसमें शर्त है, और 160 से छोटी हो। ठीक। ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है कि 160 का रिलेटिव प्राइम हो। इधर आप देखें ना, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? सही है। इट मस्ट बी द रिलेटिव प्राइम टू 5 ऑफ n। तो 5 ऑफ n यहां पर क्या है? 160 है, 160। तो उसका रिलेटिव प्राइम हो। रिलेटिव प्राइम का क्या मतलब कि इसका जीसीडी क्या हो, कॉमन फैक्टर, ग्रेटेड कॉमन डिवाइजर क्या हो? 1 हो। अब 7 के अगर आप फैक्टर बना लें और 160 के, तो कोई भी फैक्टर इसका कॉमन नहीं होगा, ठीक है ना, अदर देन 1। तो कंडीशन की समझ आ गई? यस सर। जी सर आ गई। अच्छा, बाकी लोग भी थोड़ा बता दें कि जो सुन रहे हैं। जी जी सर। सही। अच्छा, नो, ये तो फॉर द पर्पज ऑफ ई, यानी एनक्रिप्शन की के लिए ये हो गया। अब हमने डिक्रिप्शन की फाइंड आउट करनी है, तो डिक्रिप्शन की के लिए फिर हमारे पास दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि 0 से बड़ी हो और लेस देन n हो, एक चीज। दूसरा क्या हो कि उसको मॉडुलस 1 आना चाहिए अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करें। तो ये आप देख लें यहां पर डी हमने चूज किया है 23 को। तो पहले कंडीशन आप देखें क्या है, ये मीट कर रहा है कि नहीं? पहला कंडीशन d is less than n और greater than 0 सही है। सही है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि उसका मॉडुलस जो है वो मॉडुलस 1 होना चाहिए अगर आप 5 ऑफ n के ऊपर डिवाइड करें। तो अब आप देखें ई हमारे पास क्या है, ई हमारे पास क्या है? 7 और डी क्या है? 23 है। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आता है? 161 आता है। ठीक, 161 को अगर 160 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? 1। 161 को अगर 160 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए कि नहीं? तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गए कि नहीं? फुलफिल हो गई है, ठीक है। ठीक है। तो अब हमारे पास पब्लिक की ये आ गई ई कामा एन, यानी ये क्या है? ई कामा एन है, और ये हमारे पास क्या है? डी कामा एन है। तो इन दोनों में कॉमन है, एम आई राइट? जी। एन यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो दोनों में कॉमन हो गया।
समझ आ गई कि नहीं? लेकिन जो डिफरेंस है वो क्या है? दैट इज द वैल्यू ऑफ ई एंड डी, एनक्रिप्शन की ई एंड एनक्रिप्शन की डी। तो सेंडर और रिसीवर दोनों को एन का पता है, लेकिन जो पब्लिक की होल्डर है उसको एन डी का नहीं पता, जबकि सीक्रेट की या प्राइवेट की जो है उसको ई का पता है, वो तो ऑनर है, उसको तो दोनों का पता है। समझ आ गई कि नहीं? सही है। लेकिन जो पब्लिक है उसको सिर्फ ई का पता है, एनक्रिप्शन की का पता है, डिक्रिप्शन की का उसे पता नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड में आप आए और आपके पास एक मैसेज है से 88। मैसेज क्या है आपके पास? 88। आप इसको इनक्रिप्ट करना चाहते हैं, तो इनक्रिप्शन का तरीका क्या है? C इज इक्वल टू m पावर e मॉड n, वही जो यहां पर है, C इज इक्वल टू m पावर e मॉड n। तो वैल्यूज हमने यहां पर पुट कर दी, तो रिमाइंडर इज 11। डिक्रिप्शन कैसे करेंगे आप? C पावर d मॉड n, तो आपको प्लेन टेक्स्ट वापस मिल जाएगा। लेकिन प्लेन टेक्स्ट कौन गेट कर सकता है? कि जिसके पास प्राइवेट की हो। यानी डिक्रिप्शन कौन कर सकता है? जिसके पास प्राइवेट की हो। रिसीवर और जिसके पास प्राइवेट की हो, जिसके पास प्राइवेट की ना हो तो वो डिक्रिप्शन नहीं कर सकेगा, डिक्रिप्शन नहीं कर सकते। डिक्रिप्शन नहीं कर सकता। सही? हाँ के नहीं? हाँ या ना में आंसर दें मुझे। जी हाँ। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये जो दो स्लाइड्स हैं, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ठीक है, इसको मैंने कर दिया कंट्रोल C और इधर मैं कर देता हूँ कंट्रोल V, ठीक। और इसे एग्जाम्पल मैं इसके साथ लिख लेता हूँ सेल्फ, ठीक है, और वैल्यूज को मैं चेंज करता हूँ। ये 17 और 11 है, मैं इसकी जगह 23 और 19 ले लेता हूँ, ठीक। अब सही। ये जो है आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है, ये मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये भी आप लोगों ने खुद कर देनी है। सही? ये वाली जो वैल्यू है आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है। बल्कि ये तो आपके पास ये 5 ऑफ n आ जाएगा, है ना, ठीक है, लेकिन मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, ये वैल्यूज़ आप लोगों ने खुद कर देनी है, ठीक है। ये वाली वैल्यू भी आप लोगों ने खुद फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू। एग्जाम्पल आपके पास अवेलेबल है ना, इस वजह से मैं मतलब ये हटा रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद करने हैं, ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर जो है
एम कोई भी वैल्यू आप ले लें, तो ये भी मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, तो ये भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा और इसका पावर भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा और ये भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। सही। अब यस सर। ये भी आप लोगों ने ऐसे ही कर देना है। ये भी आप लोगों ने खुद कर देना है, ठीक है। जिधर जिधर क्वेश्चन मार्क मैंने डाला है, ठीक है, इनको आप लोगों ने खुद कर देना है। यू हैव अ कंप्लीट 1 वीक। तो मैं क्या करता हूँ, LMS के ऊपर इसको मैं डाल देता हूँ, ठीक है। एज ए असाइनमेंट में आपको ये दे रहा हूँ, आप लोगों ने इसको करके मुझे दे देना है। ठीक है नेक्स्ट वीक सर। बिल्कुल, मैं उसमें टाइम मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। जी ये जो है मैं आपको ऐसे करता हूँ कि LMS के ऊपर एज ए असाइनमेंट में इसको डाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, नहीं, ये मैं कॉपी कर देता हूँ और ये मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है।
दोनों मैंने स्लाइड्स आपको कॉपी करके दे दी, ठीक है। अच्छा, ये एक हो गया है। दूसरा जो है इसको भी मैं कर देता हूँ। आज 3 दिसंबर है तो मैं इसमें 6 दिसंबर तक टाइम में दे देता हूँ, ठीक। आप लोगों ने इसको कर देना है। आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग आप करते हैं, क्या करते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। बट आई रिक्वायर द सोल्यूशन टू दिस। अच्छा, इसी के साथ मैं लेक्चर को स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। क्वेरीज़ अगर आपकी कोई है तो बेशक आप मुझसे ग्रुप के ऊपर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें कि इंडिविजुअल क्वेश्चन ना करें। एडवांटेज इसका ये होगा कि और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मिल जाएगा आंसर, अगर एक बंदे को मैं आंसर दे देता हूँ, ठीक है। तो इंडिविजुअल क्वेश्चन के बजाय अगर आप ग्रुप में क्वेश्चन करेंगे, इट विल बी बेटर फॉर all others too. Thank you. I am Dr. Saeed Irfanullah from Abbasin University, Peshawar. थैंक यू सर। Okay, you're welcome. सर